Good, good evening, everyone. I hope each one of you is in the best of his health and is enjoying the changing weather. Now, in this chapter today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter, as you can see from the heading, is algebraic expression. Is algebraic expression. Now, there are two things. Sir, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले उसकी हेडिंग को समझना पड़ेगा. तो द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज सेइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. तो सर, हमको सबसे पहले अलजेब्रा समझना पड़ेगा कि अलजेब्रा क्या होता है, और उसके बाद हमें एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा. चलो एक एक करके बात करते हैं. यस. सो So now we were discussing about now we were discussing about this chapter on algebraic expression. The first thing that we will be discussing is some definition and concepts. Some definition and concept that I will be using. So the first term that we have is literal. Sorry. The first term that I have is literal. Sir, ये literal क्या होता है? Literal, sir, the letters which are used to represent the numbers, the letters which are used to represent the numbers are called as literal, are called as numbers, or they are also called as literal. इसको हम लोग literal numbers या फिर literal भी बोलते हैं. ऐसे letters जिनको हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, उन नंबर्स को हम लोग लिटरल नंबर बोलते हैं. यस निधि, बोलिए. Sir, is literal and a variable same? वेट करो जरा. The numbers that the letters that I use to represent the literals, the letters that I use to represent the numbers are called as literal numbers, और इन्हें हम literal भी बोलते हैं. For example, अगर कहीं पे 2xy लिखा हुआ है, तो in this x and y are called as literals. अगर कहीं 2xy लिखा हुआ है, तो in this x and y are called as literal. Literal numbers obey all the rules एंड साइंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लिटरल नंबर जो होते हैं या जो लिटरल होते हैं, वो सारे के सारे रूल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, अलोंग विद द प्रॉपर्टीज. इनकी प्रॉपर्टीज और इनके रूल्स दोनों को जो ये लिटरल नंबर हैं, ये फॉलो करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए इंटू बी, जैसे 3 into 4 हम लोगों ने किया था, जैसे 3 into 4 किया था, तो हम 12 लिखते हैं. सो यहाँ पे ए इंटू बी विल बी इक्वल टू ए इन ए बी. ए इंटू बी विल बी इक्वल टू ए बी. 2 multiplied by a will be equal to 2a, and x multiply y multiplied by 3, x multiplied by 3 थोड़ा अजीब लगता है, so that will be equal to 3y. so और एक और चीज, अगर a into a up to 15 times अगर मैंने किया, अगर मैंने ये किया कि a into a up to 15 times, so this I can write as a raised to the power 15. This I can also write as a raised to the power 15. So these are called as the literals. These are called as the literals. ठीक है. तो ये जो हो गए भाई, ये हमारे literals हो गए. अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं. निधि, आई विल आंसर योर क्वेश्चन लेटर ऑन. अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं. The term of the expression having no literal factor is called as a constant term. जो constant है हमारा, the numbers that are there, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, that is called as a constant. For example, in this 7 is a constant term. 7 is a constant term. यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में 3/2 -3/2 is a constant term. इस वाले एक्सप्रेशन में 7 is a constant term. इस वाले एक्सप्रेशन में -3/2 is a constant term. Variable, a symbol which takes various numerical values is called as variable.
A symbol which can take various numerical values is called as a variable. See, the variable and the literals are cannot be taken as same, but the variables, I mean, see, variables की जो value होती है that depends upon the expression that I'm having, but literals are something, are the representation of numbers, and the literals can be added and subtracted like the numbers. ठीक है. And variable means अगर मैंने 3x plus 5, अगर मैंने 3x plus 5 लिखा, तो यहाँ पे this for different value of x की मैं जितनी भी वैल्यू लूं, I will have different values. ठीक है. तो for different values of x I will have different values, so that is why the variables have different values. A symbol which takes various numerical values is called as a variable. The next is algebraic expression. अभी algebraic So sir, we can tell that literals do not take various values, but variables take some numbers. Yes. Literals can have a particular value, but yes, variables can take, but yes, the variables can take various values. Literals can have a particular value, but the variables can take various values. Algebraic expression क्या होता है? An algebraic expression is a combination of algebraic expression is a combination of constants and variables connected by the sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी है, जिसमें वेरिएबल भी है, और ये सारे के सारे कांस्टेंट और वेरिएबल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा आपस में कनेक्टेड हैं. इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग algebraic expression बोलते हैं. Now see, this part of this chapter is very important because here this part of the chapter is very important because here we are going to read the different concepts. ये concepts हमें आगे बहुत काम आने वाले हैं. So algebraic expression is a combination of constant and variables which are connected by the signs of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division. ये सारे के सारे addition, subtraction, multiplication और division के द्वारा इंटरकनेक्टेड रहते हैं. इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग algebraic expression बोलते हैं. The next is terms, factors and coefficients. The next thing that I have is terms, factors and coefficient. अब एक काम करते हैं, एक एक्सप्रेशन को ले लो 3x minus 5y plus 8. Just take an expression which is 3x minus 5y plus 8. ठीक है. अब इस एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती हैं, टर्म्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं. क्या होता है, कैसे होता है, बात करते हैं. देखो, दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 3 टर्म्स. इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं. कौन कौन से टर्म्स हैं? पहला टर्म ये हो गया सर, दूसरा टर्म ये हो गया सर, और तीसरा टर्म ये हो गया सर. दीज 3 आर कॉल्ड एज द टर्म्स. इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है. पहला है 3x, दूसरा है माइनस 5y और तीसरा है प्लस 8. दीज 3 आर कॉल्ड एज द टर्म्स. इन टर्म्स को ऐड करके मुझे एक एक्सप्रेशन मिला. इन टर्म्स को ऐड करके मुझे एक एक्सप्रेशन मिला. टर्म्स कैसे बनता है? टर्म्स बनते हैं फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके. टर्म्स कैसे बनते हैं सर? फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके. जैसे कि सर अगर मैं माइनस एक मिनट ध्यान आंसरिंग, जैसे कि अगर मैं माइनस 5y की बात करूं तो इस माइनस 5y के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? फैक्टर मतलब दिस माइनस 5y इज मेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ -5 एंड y. ये जो टर्म्स बनते हैं वो तो -5 एंड y आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स. अभी जब हमने लिटरल्स की बात की थी तो हमने बोला था कि जैसे 2x है, it is made by 2 multiplied by x. So 2 and x are the factors of this literal. 2 and x are the factors of this literal. अगर मैं 3xy की बात करूं तो सर यहाँ पे 3, x, y are the factors of this literal. ठीक है.
अगर मैं a रेज टू द पावर 15 की बात करूं, अगर मैं a रेज टू द पावर 15 की बात करूं, तो ये a up to 15 times, these all will be called as the factors of this term. So हमने क्या सीखा, हमने सीखा टर्म के फैक्टर्स. तो यहाँ पे I'm having terms are made up of factors. So in 3x, 3 and x are the factors. The number of factors of a term is called its the numerical factor of a term is called its numerical coefficient or simply coefficient. अगर मैं coefficient की बात करूं, if I talk about the coefficient of a term, तो अगर मैं -5x की बात कर रहा हूं सर, तो -5x का जो coefficient होगा that will be -5. अगर मैं 6xy की बात कर रहा हूं, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 6. ठीक है. अगर मैं 9xy या 15xy की बात कर रहा हूं, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 15 होगा. और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ x इंटू वाई की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल फैक्टर है दैट इज जस्ट 1, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा. क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? Yes, sir. निधि, निधि, you wanted to ask something, please ask. निधि, you wanted to ask something, please ask. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि सर कितने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं. भाई देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टोटल 4 टाइप्स में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? द फर्स्ट कैटेगरी इज द मोनोमियल. मोनोमियल क्या होता है सर? मोनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन if it has only one term. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं. किसको मोनोमियल बोलते हैं? क्या होता है मोनोमियल? सर मोनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है. What is a monomial? Monomial is an algebraic expression that has only one term. 9x square minus 5x square, 27x cube, 39x to the power 5. Each of this expression has one term. यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो है हमारा, एक तो टर्म क्या था बेटा? बहुत कंफ्यूजन होता है. टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल. कांस्टेंट एंड लिटरल के का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज टर्म. और एक ऐसा एक्सप्रेशन क्या था? इफ द वेरियस टर्म्स आर कनेक्टेड बाय एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन, then they form an algebraic expression. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम मोनोमियल की बात कर रहे हैं. मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज ओनली वन टर्म. मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज ओनली वन टर्म. बाइनोमियल की बात करें, बाइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज टू टर्म्स. ट्राइनोमियल की बात करें, ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज 3 टर्म्स. देन मल्टीनोमियल की बात करें, ट्राइनोमियल के बाद के जो टर्म्स होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता, उसको हम फिर नाम दे देते हैं मल्टीनोमियल. मल्टीनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन दैट हैज मोर देन 3 टर्म्स, इसको हम लोग मल्टीनोमियल बोलते हैं. सो एन एक्सप्रेशन दैट हैज मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड एज मल्टीनोमियल. ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए. अब हम बात करते हैं like and unlike terms की. Now my dear friends, this concept is very raised to the power 15, raised to the power 225, raised to the power 12025 important. This concept is very raised to the power 25, raised to the power 225, raised to the power 625, raised to the power 1275, raised to the power 2025 important. Sir, infinite. This is not infinite. Basically मैंने जो numbers बोले थे वो मैंने हर number का
स्क्वायर बोला था, मैंने पहले क्या बोला, मैंने बोला 25 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, फिर मैंने क्या बोला 225 विच इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। सर फिर मैंने बोला 625 625 विच इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। फिर मैंने बोला 1225, फिर मैंने बोला 1225 दिस विच इज इक्वल टू 35 स्क्वायर। फिर मैंने बोला 2025 विच इज इक्वल टू 45 स्क्वायर। कैसे आया, मुझे कैसे पता चल गया ये सब? मुझे ये सब पता चला क्योंकि मैंने नोट्स पढ़े थे। मुझे ये सब पता चला क्योंकि मैंने नोट्स पढ़े थे। मैंने जो नोट्स आप लोगों को बताया था, जो मैंने नोट्स आप लोगों को पढ़ाए थे, वो नोट्स मैंने पढ़ा था। मैंने नोट्स में आपको ये बताया था कि बेटा अगर इफ आई वांट टू राइट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 5, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 5, तो इसका मैंने एक तरीका बताया था। अब मैं पूछूंगा तो वो नहीं बता पाएगा, देन आई विल बी वेरी एंग्री ऑन हिम, ऑन दैट बॉय, but still I want to ask Dave, what I was saying here is this topic is very raised to the power 25, raised to the power 625, raised to the power 220, raised to the power 225, ऐसे this topic is important. Why? Because this topic forms the basis of your how you are going to understand the algebra. ठीक है, तो कैसे होता है सर? What are like terms and what are unlike terms? Like terms are, please note it down. Like terms are terms having same combination of literal numbers. The terms that have same combination of literal numbers are called as like terms, and otherwise they are called as unlike terms. The term that have same combination of literal numbers are called as like terms, otherwise the terms are called as unlike terms. For example, अगर एक term है 12x, if one of the term, just a minute. For example, my dear friends, if one of the term is, no, this won't work. If one of the term is 12x and the other term is 13x, other term is 15x, other term is 225x, other term is 625x, ये सारे के सारे terms like terms हैं. If one term is 12x, another term is minus 15x, another term is minus 625x, these all the terms are like terms. सर कोई टर्म लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कैसे होगा? बेटा इस x को देखो, यहाँ पे जो इस टर्म के साथ जो लिटरल है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकना आप लोग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि 12x है, तो बेटा सर सवाल ये उठता है, सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, मेरा तो क्या बोलते हैं उसको, कोई मराठी हो जो अजय देवगन ने बहुत अच्छा एक डायलॉग मारा था, अता माझी सटकली। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या करूं सर, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। अभी तो हम बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स इज इजी, लेकिन इससे अच्छा तो बायो ही है, कम से कम वहां पे सीधे सीधे तो चीजें होती हैं। यहाँ तो क्या है, लिटरल क्या है, व्हाट आर लाइक टर्म्स, व्हाट आर अनलाइक टर्म्स, आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड। है ऐसा है आप लोग के साथ? आर यू गाइस कंफ्यूज्ड? मत हो कंफ्यूज। कैसे पता करेंगे कोई टर्म लाइक टर्म है और कोई टर्म अनलाइक टर्म है, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले उसके लिटरल के पास जाओ। अगर इसका लिटरल x है, 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 तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे? क्या होंगे? लाइक होंगे। वेरी गुड। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर मैं अब मेरे को एक कंफ्यूजन आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हुआ मेरे को, एक टर्म सर 12x है, एक टर्म 13y है, एक टर्म मान लो 17z है, एक टर्म मान लो 65a है, ये सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे? लाइक होंगे या अनलाइक होंगे? अनलाइक टर्म्स होंगे। वेरी गुड। अगर एक टर्म 12x है, दूसरा टर्म 13y स्क्वायर है,
तीसरा टर्म 13z65a³ है। ये सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, लाइक होंगे या अनलाइक होंगे? Unlike. अनलाइक Unlike. होंगे। तो बेटा लाइक टर्म्स का एक ही तरीका होता है, लाइक टर्म्स का एक ही क्राइटेरिया होता है, दैट द लिटरल्स शुड बी सेम। नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। नंबर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही बात से मतलब है, और वो है लिटरल। द लिटरल शुड बी सेम। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड। अब आगे सुनो। तो जब हमारे नंबर्स के जब हमारे लिटरल सेम है सर, तो उसके बाद क्या करें, इन टर्म्स को हमने बोल दिया लाइक टर्म्स, और जो जो टर्म्स जिनके लिटरल सेम नहीं होते हैं उन टर्म्स को हम बोल देते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने कहीं से आम खरीदा, ठीक है, आई डोंट नो हाउ द मैंगो इज क्लासिफाइड in this part of the world, but in UP the mangoes are classified as दशहरी, लंगड़ा and other. I don't know यहाँ क्या बोलते हैं, but यूपी में यही बोलते हैं। तो मान लो मैंने टाइप ए का मैंगो खरीदा, I purchased 5 mangoes of type A, and on the other hand I purchased 20 mangoes of 5 type B. So these two mangoes will be different. अगर कोई मुझसे पूछेगा कि हाउ मेनी मैंगोज आई हैव, आई कैन नॉट से दैट आई हैव 25 मैंगोज। बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो, बोलने को तो आप 20⁵ मैंगोज भी बोल दो, बट दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट यू शुड से कि सर आई एम हैविंग, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम हैविंग 5 मैंगोज ऑफ टाइप ए, लंगड़ा, दशहरी, जो बोलना है बोल दो, एंड 20 मैंगोज ऑफ टाइप बी। This will be your answer, because sir this is a different term, this is a different term, this is these two terms are unlike terms. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने मान लो 5 मैंगोज खरीदे टाइप ए के, केसर वाले मैंगोज खरीदे, एक मिनट दिया, आई एम आंसरिंग, और आपने 15 मैंगोज खरीदे टाइप बी के, so type A के। if somebody is asking you how many mangoes you have, you will say, sir with due respect I am having 20 mangoes of type A. Is it clear to everyone how I will have 20 mangoes of type A? That 15 mangoes of type A and 5 mangoes of type A, दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, मुझे मिल गया 20 मैंगोज ऑफ टाइप ए। वेरी गुड सर, कितना आसान तो सब्जेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले दिमाग खराब हो रहा था, देख लो कितना आसान सब्जेक्ट है। हाँ भाई निधि, पूछिए क्या पूछ रही हैं निधि? Yes, sir. हाँ पूछिए बेटा। Sir, are the degrees have to be same or if they are different? No. Okay. डिग्रीज डोंट हैव टू बी सेम। डिग्रीज की अभी बात मत करो, अभी बस इतना समझो कि 6x and 5x are the like terms, but 6x and 5x square are not like terms, because here the literals are different. Here the literal is x and here the literal is x square. Here the literal is x and here the literal is x square. You have raised a very good question, Devvara. Can you please answer me? Are the following terms that I am going to write like, or you have to find what are the like terms in the expression that I am going to write? -5 plus 5x square plus 5x plus 5x cube plus 5x raised to the power 4. You have to tell me which terms are the like terms and which terms are the unlike terms. Dev, fast. Devvara, just answer me quickly. Sir, 5x is like term. 5. Which terms are like terms? You have to tell. अगर एक term कोई like term होगा, see here the word is terms. एक टर्म अकेला लाइक टर्म नहीं हो सकता, उसके साथ एक और टर्म होगा तभी वो लाइक टर्म बनेगा। हाँ बताइए, विच टर्म्स आर लाइक टर्म्स हियर?
Sir, 5x square, And then 5x cube. how these terms are like terms? You are saying that 5x square and 5x cube are the like terms. How, beta, how they are like terms? Is the literal same here? What is the literal in 5x square? Tell me. What is the literal in 5x square? X square. X square. What is the literal in 5x cube? X cube. Are these two same? Is x square and x cube same? हाँ, सुनाई नहीं दिया जोर से? No, sir. नो सर. तो जब ये नहीं है सेम, तो इसका मतलब यही हुआ ना बेटा कि these two are not like terms. तो नहीं है लाइक टर्म, कुछ नहीं है, तो सर बोलो ना सर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, आपने गलत लिखा है. इस एक्सप्रेशन में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि सारे टर्म्स का तो लिटरल अलग अलग है भाई. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स फोर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वन है, यहाँ एक्स टू 0 है, यहाँ पे कोई लिटरल नहीं है. तो बोलो ना जब कोई लिटरल नहीं है तो इट विल नॉट हैव एनी लाइक टर्म. ठीक है. So this is the thing. The next thing that I will be discussing is degree of an algebraic expression. What is the degree of an algebraic expression? Sir, the degree of an algebraic expression का मतलब होता है, जैसे मान लो इसको ऐसे समझते हैं, देखो डेफिनेशन बहुत सारी है, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ बुक में लिखने के काम आती है. जो डेफिनेशन हम याद करते हैं मशीन की, वो हम वही डेफिनेशन याद करते हैं जो रेंचो ने बोली थी. हम चतुर वाली डेफिनेशन को याद नहीं करता. आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस टू द मूवी 3 इडियट. जिसने नहीं देखा हो, कभी टाइम मिले तो देख लेना, बट टाइम मिले तो. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग सर हियर इज, सपोज आई एम ए बीटेक, सपोज आई एम ए graduate, be it engineering graduate, be it medical graduate, forget it. I'm a graduate. So my degree will be, अगर मैं कहीं पे कोई फॉर्म भरता हूं, तो what I will say, what they ask me is to write my educational classification starting from highest to lowest. हाईएस्ट टू लोएस्ट वो बोलते हैं मुझे मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने के लिए. तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने 10th पास किया, बस. उसके नीचे मैं नहीं लिखता कि मैंने 8th पास किया था, कि मैंने 9th पास किया था, कि मैंने LKG UKG पास किया था. सो माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज बीइंग रजिस्टर्ड इज ए ग्रेजुएट. वही बात यहाँ पे आती है. सपोज करो आप में से किसी के फादर डॉक्टर हैं, या किसी के फादर इंजीनियर हैं, या किसी के फादर से बिजनेसमैन है. तो जिन्होंने जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने MBA किया होगा, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एप्लीकेशन, व्हाट इज इट, आई डोंट नो. तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने MBA किया होगा. जिसके पापा डॉक्टर हैं, उन्होंने MBBS किया होगा. तो अगर आपके फादर से कोई डिग्री पूछेगा, तो आपके फादर ये बोलेंगे आई एम ए MBBS MD इन मेडिसिन, आई एम ए MBBS MD इन मेडिसिन. या आपके जिसके फादर ने MBA किया होगा, वो अगर कोई उनसे उनकी डिग्री पूछेगा, तो वो ये बोलेंगे कि आई एम एन MBA इन से फिनेंस, आई एम एन MBA इन से लॉजिस्टिक्स. So this is what he will be saying. वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आई एम 10th पास, आई एम 12th पास, आई एम ग्रेजुएट, आई एम MBA. नो, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे. वो ये बोलेंगे सर आई विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई एम एन MBA इन लॉजिस्टिक, या आई एम एन MBA इन फिनेंस. यही बात साहब यहाँ पे होने वाली है. क्या होने वाली है साहब? डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो हम डिग्री की जब हम बात करते हैं, तो हम जो हमारा लिटरल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को ढूंढते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो x टू द पावर 2, x यहां लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को इस तरीके से लिखा हुआ है x टू द पावर 2 प्लस ऑफ x टू द पावर 5 से x टू द पावर 10. यहाँ पे सर जो x की हाईएस्ट पावर है that is 10. So the degree of this algebraic expression will be 10.
I am concerned about the highest educational qualification. I'm not concerned about 10th कब किया, 12th कब किया, 10th कहां से किया, कोई मतलब नहीं है, मुझे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओ. तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x in this algebraic expression is 10. अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, द पर्सन्स हैव डुअल डिग्री. डुअल डिग्री बोले तो पहले मान लो ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मान लो एमए कर लिया, उसके बाद फिर से एमए कर लिया. डेट इज कॉल्ड एज डबल एमए. कुछ केसेस होते हैं, मैंने खुद ने देखा है, कुछ डबल एमए वाले लोग होते हैं वहां. अब यहाँ पे अगर इसको लेकर आया जाए तो अगर मेरा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में दो लिटरल्स हैं, एक एक्स एक वाई, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जब मेरे को उस केस में डिग्री बतानी होगी, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, ये नीचे वाला, तो इस केस में मैं उस केस में जब मेरे को डिग्री बतानी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं हाईएस्ट समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स देखूंगा. जैसे देखो, इस टर्म में x टू द पावर 1 है और y टू द पावर 1 है, तो 1 + 1 हो गया. अब इस टर्म की बात करते हैं डिटेल में, जरा इस टर्म की जरा डिटेल में बात करते हैं. द टर्म इज 8xy - 7y³ + 9x² × y². अब देखो, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2. यहाँ पे y टू दी पावर 3 है, तो जो सेकेंड टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो गई. जो थर्ड टर्म है 9x² × y², यहाँ पे जो डिग्री हो गई डेट इज 2 + 2 which is equal to 4. So my dear friend, the degree of these type of expressions जिसमें कि दो लिटरल्स होते हैं, that is 4. That is दोनों की इंडिविजुअल डिग्रीज को अपन ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐड करते हैं. इंडिविजुअल डिग्रीज को अपन ऐड कर देते हैं. ठीक है. So this is called as the degree. This was the discussion about degree. हाँ, बोलिए. Sir, what if the two terms have the same power? In that case, the degree will be same. In that case, the degree will be the sum of the highest sum that you are getting. Yes, Nidhi, बोलिए. Okay. Oh, no, sir. My raised hand was for the previous term only. Okay, My ठीक. hand was that was clear. Okay, fine. So अब देखो, अब जरा एक बार इसको पढ़ लेते हैं. इन्होंने क्या लिखा, बड़े अच्छे लोग हैं. इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इफ एन algebraic expression contains only one variable, say x, then it is called as an algebraic expression in one variable. हमारा जो सिलेबस होगा, हमारी जो बातें होंगी, वो मेनली algebraic expression in one variable के बारे में ही होगी. And its degree is the highest exponent of that variable in the expression. जो मैंने अभी आपको बताया कि x की जितनी पावर है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, that is called as the degree. Next, if an expression contains two variables, say x and y, then it is called as an expression in two variables. अगर एक expression में दो variables हैं, तो सर मैं उसको एक algebraic expression in two variable कहूंगा. और इस expression की जो डिग्री होती है, it is the highest exponent of the sum obtained by adding the exponents of the variable. जो आपका जो variables हैं, उनके powers को आप add करते जाओ, जहां पे आपको हाईएस्ट मिलेगा, that will be the degree. जैसे यहाँ पे 1 और 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 + 2 था, 2 + 2 4 आया, वहां पे 3 था, वहां पे 1 था, 1 और 1 था, तो 2 3 4. So the highest power is coming out to be 4. So sir, the degree will be 4. The degree will be 4. This is what is the thing. ठीक है. ask yourself first. ये आप लोगों को करके आना है अगली क्लास में. I will start from here. I will discuss the questions here and then I will move further. चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है. नहीं, टाइम तो अब नहीं है. तो what I will be doing is I will start from here. ये 5 क्वेश्चंस हैं, 2 दिन का समय है, कर लेना. I will be discussing these questions on Monday and then I will proceed further. ठीक है सर. तो now what I will do is I will stop your session now and